Welcome students. Our unit number 1 is maps and diagrams. In this chapter we have two topics, maps and the second is diagrams. In our previous class we have read all about maps and its different types. Today in this class we will read about diagrams. We use diagrams to show statistical data. Statistical data means our numerical data, the data in which different numbers, different digits are involved. For showing that statistical data we need diagrams. In geography, diagrams are those conceptual sketches through which geographical information and data is transferred to the paper. ज्योग्राफी में डायग्राम्स हम उन स्केचेस को कहते हैं जिसमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमारी डिफरेंट डाटा और मालूमात को हम एक पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं. एंड द पेपर हेयर मीन्स ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर के ऊपर जब हम डिफरेंट जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन और डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या शो करते हैं तो उसको हम डायाग्राम्स कहते हैं. दीज आर कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डायाग्राम्स. We have three types of statistical diagram. First is line graph, second is bar graph and third is pie graph. We are calling here graph because we show statistical data on graph paper. You can also say line diagram, bar diagram or pie diagram. So we use these three methods to show our statistical data, and to make our diagrams we use these three methods. First of all, we will learn about line diagram or line graph. Line graphs are used to show data that changes over a period of time. Line graph हम उस डाटा को शो करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ. The definition of line graph is when the statistical data is displayed in the diagram with the help of a line on the graph, it is called line graph. जब हम अपने statistical data को diagram में डिस्प्ले करते हैं लाइन के थ्रू ग्राफ के ऊपर, जब हम एक ग्राफ पेपर के ऊपर लाइंस के थ्रू अपने स्टैटिस्टिकल डाटा को शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं तो उसे हम कहते हैं लाइन ग्राफ. इन दिस ग्राफ टू वेरिएबल्स आर डिस्कस्ड, one as variable quantity and other as a constant. In this diagram, इस डायग्राम में हम टू वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं. एक वेरिएबल हमारा क्वांटिटी होता है, मेजरेबल होता है जिसको हम मेजर करेंगे जो कि चेंज होता रहता है, और दूसरा जो है वो हमारा कांस्टेंट होता है, मतलब कि वो चेंज नहीं होगा. कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन ग्राफ. Now we will learn that how we will construct line graph. To construct a line graph, two lines are drawn that bisect normally at each other at 90 degree. लाइन ग्राफ को बनाने के लिए हम दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर कनेक्ट करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी. बाइसेक्ट का मतलब होता है कनेक्ट करना, एक दूसरे के साथ जुड़ना या मिलना. Students, you have read in mathematics that how to draw 90 degree angle. So you can assume here that we are drawing 90 degree angle here with the help of two lines. We will draw first line vertically, means we will draw first line lengthwise. हम lengthwise पहली line को draw करेंगे जिसे हम कहेंगे vertical line हमने draw की है. Then we will draw second line horizontally widthwise. सेकेंड लाइन हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे एंड दीज टू लाइंस विल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट एट 90 डिग्री. एक पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं. दिस इज़ हाउ वी विल स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग आवर लाइन ग्राफ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कांस्टेंट वेरिएबल एंड मेजरेबल वेरिएबल. Constant variable, that is days, months, years, kilometers and kilogram, is placed on horizontal axis. Constant variable are the variables whose values cannot be changed once it has been assigned a value.
कांस्टेंट वेरिएबल हमारे वो वेरिएबल होंगे जिनकी वैल्यूज़ हम चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा जब हम उनकी वैल्यू असाइन कर देंगे, जब एक दफ़ा हम उनकी वैल्यू रख देंगे तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते। एंड वी विल प्लेस दैट वेरिएबल्स ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस विथ वाइज. The line we draw with wise horizontal wise, it will call horizontal axis. As you can see that horizontal line, we have given the name of horizontal line horizontal axis, or you can say it x axis. Measurable variable, that is rainfall, temperature, air pressure and production, is placed on vertical axis. Measurable variable, the variable that will keep on changing, and the variable whom which we can measure. जिन वेरिएबल्स को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम वर्टिकल लाइन पर रखेंगे, वर्टिकल एक्सिस पे रखेंगे. दैट मीन आवर फर्स्ट लाइन which we have drawn vertically, we will call it vertical axis or y axis. So constant variable will be placed on horizontal axis, and the measurable variable which we will measure, it will be placed on vertical axis or y axis. To measure the values at vertical axis, an appropriate scale is determined. Values को measure करने के लिए students, as I have told you earlier, that we will place measurable variables on vertical axis. So for measuring that variables, उन variables को measure करने के लिए हमें एक scale चाहिए. Scale means the scale we normally use in our daily routine, and you have seen this scale before. It has different measurements. It has two sides. On one side we have millimeters, and on other side we have centimeters, and we have different numbers that showing the major lines. इसमें आप देख रहे होंगे स्केल के ऊपर मेजर लाइंस भी हैं और माइनर लाइंस भी हैं. जो मेजर लाइंस हैं वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो नंबर्स लिखे हुए हैं, और जो माइनर लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी उन नंबर्स को जो हमने लिखे नहीं हुए. लाइक 1 और 2 है, तो 1 और 2 के दरमियान जो नंबर्स, कौन से नंबर आएंगे, पॉइंट वाले, 0.1, 0.2, 0.3. तो अगर कोई अमाउंट 0.3, 0.4 आ रही है तो हम उसको मेजर करेंगे माइनर लाइन से, उनको हम ड्रॉ करेंगे माइनर लाइंस को यूज़ करते हुए. इसी तरह से हम इन नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं और हम अपना स्केल ड्रॉ कर सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पर, ताकि हम मेजर कर सकें अपने मेजरेबल एक्सिस को. जैसे हम 5 का इंटरवल भी रख सकते हैं. इंटरवल मीन गैप. जैसे कि इस स्केल पर आपको 1 डिजिट का गैप नज़र आ रहा है, तो हम इसको गैप को बढ़ा के 5 का भी रख सकते हैं. लाइक हम 1 की जगह हम 5 लिख सकते हैं, 10 की जगह हम 2 की जगह हम 10 लिख सकते हैं. इसी तरह हम 10 का इंटरवल रख सकते हैं, लाइक 0 to 10, then 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80. 10 का इंटरवल भी रख सकते हैं. इट विल डिपेंड ऑन आवर मेजरमेंट्स. हमारी मेजरमेंट्स कहाँ तक हैं उसके मुताबिक हम अपना स्केल रखेंगे, उसके मुताबिक हम अपना इंटरवल डिसाइड करेंगे. With the help of scale, values are marked in the form of dots for each constant variable. Then these dots are joined by a line to prepare a line graph. As you can see in this diagram, that we have placed measurable variable, that is temperature, on vertical axis, and we have make scale and we have make intervals of 10 digits, like 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. And we have placed constant variable that are cities on horizontal axis. So after taking the measurements, we will mark the dots of different measurements, and in the end we will join these dots to form a line. This is how we will construct our line graph. हम डिफरेंट मेजरमेंट्स, जब हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट्स आएंगे डिफरेंट सिटीज़ की, टेम्परेचर की, तो हम डॉट्स लगाते जाएंगे और एंड पर हम उन डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास लाइन ग्राफ प्रिपेयर हो जाएगा. We will learn it better through a example. I have one example of a temperature on 15th May of different cities of Pakistan. In this example, we have taken 5 cities of Pakistan and we will measure their temperature on 15th May. हम देखेंगे कि इन 5 cities का
15 मई को टेम्परेचर कितना था और इसका हम लाइन ग्राफ बनाएंगे। देयर आर 3 थिंग्स इन लाइन ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल टेल अस व्हाट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड। टाइटल हमें बताएगा कि किस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक इन दिस एग्जांपल वी आर रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान ऑन 15 मई। देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, it shows the different time period or the name of things being compared। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम उन चीज़ों को रखेंगे जिनको हमने कंपेयर करना है। इन दिस लाइन ग्राफ द एक्स एक्सिस इंडिकेट्स द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। थर्ड थिंग इज़ वर्टिकल एक्सिस, इट हैज़ नंबर्स फॉर वट एवर इज़ बीइंग मयर्ड। वर्टिकल एक्सिस पर हमने वो नंबर रखे हैं जो भी चीज़ को हम मयर कर रहे हैं। It means measurable variables. In the given line graph, y-axis is measuring temperature of different cities। टेम्परेचर को हमने वर्टिकल एक्सिस पर रखा है और सिटीज़ को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखा है, बिकॉज सिटीज़ जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगी और टेम्परेचर जो है उसको हम मेजर करेंगे। स्टूडेंट आप इसमें इस ग्राफ में देख रहे हैं कि कुछ मेजर लाइंस हैं, कुछ लाइंस बोल्ड हैं और कुछ माइनर लाइंस हैं। आई हैव गिवन डिफरेंट कलर्स टू माइनर लाइंस and I have given black color to major lines and I have given parrot and green color to minor lines so that you can see the difference of major and minor lines। आपके पास जो ग्राफ पेपर होता है वो भी आपका इसी तरह से बना होता है कि कुछ लाइंस को बोल्ड किया होता है और माइनर लाइंस को लाइट रखा गया होता है ताकि आप इजीली चीज़ों को मेजर कर सकें और ड्रॉ कर सकें। हमारी जो मेजर लाइंस हैं ग्राफ के ऊपर वो चीज़ों को शो करने के लिए होती हैं। जैसे मेजर लाइंस, जो वर्टिकल मेजर लाइंस हैं वो हमारी सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं और दूसरी तरफ जो हमारी मेजर लाइंस हैं, ब्लैक कलर की लाइंस हैं, वो हमारी मेन मेजरमेंट्स को शो कर रही हैं। यहाँ पर जो हमने स्केल लिया है स्टूडेंट्स, उसमें 5 का इंटरवल है। जैसे आप देख सकते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। और इस ग्राफ में जो हमारे पास माइनर लाइंस हैं, जो पैरेट कलर की लाइंस हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं उन नंबर्स को जो हमें शो नहीं हो रहे। जैसे कि अगर आप पहला ब्लॉक देखें 0 to 5 हमने 0 लिया है और सेकंड बोर्ड लाइन पे हमने 5 को लिखा है, तो 0 से 5 के दरमियान जितने भी डिजिट्स आते हैं लाइक 1, 2, 3 एंड 4, हम उनको माइनर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक अगर किसी भी सिटी का टेम्परेचर 4 डिग्री आ जाता है लेट्स सपोज, या 3 डिग्री आ जाता है, तो वो हम इस माइनर लाइन से शो कर लेंगे। हमें माइनर लाइन से उसकी मेजरमेंट पता चल जाएगी। जैसे ब्लैक लाइन के बाद जो हमारी फर्स्ट ब्लॉक में पैरेट लाइन आ रही है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड लाइन जो है वो 2 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो थर्ड लाइन है वो 3 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड फोर्थ लाइन 4 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से बाकी माइनर लाइंस भी उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि हमें शो नहीं हो रही, जो कि हमारे इंटरवल्स में आ रही हैं, जो कि हमारे गैप्स में आ रही हैं। सो स्टूडेंट्स, मेजर लाइंस और माइनर लाइंस के आपको पता चल गया। मेजर लाइंस हमने जो टेम्परेचर लिया हमने उसमें 5 डिजिट्स का इंटरवल या गैप रखा है, और हमने 2 ब्लॉक्स का गैप रखा है अपनी सिटीज़ के दरमियान, क्योंकि हमने मेजर जो लाइंस हैं उनके ऊपर अपने वेरिएबल्स को रखना होता है, चाहे वो मेजरेबल वेरिएबल्स हों या कांस्टेंट हों। हम मेजर लाइंस को हम यूज़ करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट मेजरिंग अ टेम्परेचर। As you can see in this diagram that Lahore has temperature of 34 degree centigrade on 15th May। 15th मई को लाहौर का टेम्परेचर जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। सो 34 डिग्री जहाँ पर हमारे पास मेजरमेंट आ रही है उसके बिल्कुल सामने हम डॉट लगा देंगे लाहौर की लाइन को देखते हुए। स्टूडेंट्स, हम सिर्फ मेजरमेंट्स नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि हम किस सिटी की टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस सिटी के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस सिटी की लाइन के ऊपर ही डॉट लगाएंगे। जैसे कि फ़र्स्ट जो हमारी मेजर लाइन है, ब्लैक कलर की लाइन है, वो लाहौर की लाइन है, इसलिए हमने उस लाइन के ऊपर 34 डिग्री के सामने एक डॉट लगा दिया है। सेकेंड सिटी इज़ इस्लामाबाद, एंड इस्लामाबाद का टेम्परेचर 15 मई को 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। दैट्स वाई ऑन सेकेंड मेजर लाइन, हमारी जो सेकेंड ब्लैक लाइन है वो इस्लामाबाद की लाइन है, दैट्स वाई हमने उस सेकंड लाइन के ऊपर 20 डिग्री के सामने सेकंड डॉट लगा दिया। इसी तरह कराची का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस था, दैट्स वाई हमने जो हमारी थर्ड मेजर लाइन है उसके ऊपर हमने 33 डिग्री के सामने
डॉट लगा दिया, और इसी तरह हमने कोयटा और पेशावर के लिए भी उसकी लाइन के ऊपर उनके जितने भी टेम्परेचर्स आ रहे थे उसके सामने जो है हमने डॉट लगा दिया। एंड इन दी एंड वी विल जॉइन दीज डॉट टू फॉर्म अ लाइन। एक लाइन बनाने के लिए हम इन डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी जिसे हम लाइन ग्राफ कहते हैं। स्टूडेंट्स दे लेट मी टेल यू वन थिंग हियर कि हमने क्यों डिफरेंट लाइंस पर हम शो कर रहे हैं। लाइक हम पहली लाइन पर भी तो सारी मेजरमेंट्स शो कर सकते थे, हम 20 को भी हम फर्स्ट लाइन पे शो कर सकते थे, 33 को भी हम फर्स्ट लाइन पर शो कर सकते थे। हम डिफरेंट लाइंस पर क्यों शो कर रहे हैं डिफरेंट टेम्परेचर को? वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स हमने हर सिटी के लिए डिफरेंट लाइन ड्रॉ की हुई है। हम सारी सिटीज़ को एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और अगर हम एक ही लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास कोई भी लाइन फॉर्म नहीं होगी, सारे डॉट्स हमारे फर्स्ट लाइन पर ही लगते जाएंगे और हमारे पास ये लाइन फॉर्म नहीं होगी। तो जो बेसिक पर्पज़ है लाइन ग्राफ का वही नहीं रहेगा। द बेसिक पर्पज़ ऑफ लाइन ग्राफ इज़ टू कंपेयर डिफरेंट वैल्यूज़, और यहाँ पर हम डिफरेंट सिटीज़ के टेम्परेचर को कंपेयर कर रहे हैं कि किस सिटी में कितना टेम्परेचर था, ज़्यादा था, कम था, कहाँ पर ज़्यादा था और कहाँ पर कम था। इसलिए हम लाइन ग्राफ में डिफरेंट लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट एक्सिस पर दोनों वेरिएबल्स को रखते हैं ताकि हम एक लाइन फॉर्म कर सकें। सो लेट मी रिवाइज अगेन। फॉर कंस्ट्रक्टिंग लाइन ग्राफ वी विल प्लेस measurable variable on vertical axis and we will place constant variable on horizontal axis। measurable variable जिनको हमने measure करना है उनको हम vertical axis पे रखेंगे, और जिनको हमने चेंज नहीं होंगे हमारे कांस्टेंट वेरिएबल हैं वो हम हॉरिजॉन्टल पे रखेंगे। देन हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे और हम कांस्टेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग डॉट्स लगाते जाएंगे और एंड में हम उन डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे एंड दैट्स हाउ आवर लाइन ग्राफ विल बी फॉर्म। There are some merits and demerits of line graph. You can say there are different advantages of line graph. First of all, we will read about merits or advantages of line graph. With the help of line graph, more than one variable can be compared easily. For example, we can compare the annual temperature and rainfall values of Karachi and Lahore, which is not possible on bar and pie graph. स्टूडेंट लाइन ग्राफ के थ्रू हम दो वेरिएबल्स को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप नीचे इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर टू लाइंस हैं। एक लाइन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में भी पढ़ा है कि हम डिफरेंट सिटीज़ के टेम्परेचर को कंपेयर कर रहे थे। अगर हम चाहें कि हम इसी ग्राफ के ऊपर इन्हीं सिटीज़ की रेनफॉल को भी कंपेयर कर लें कि किस सिटी में कितनी रेनफॉल हुई है, तो वो भी हम इसी लाइन ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि बार ग्राफ और पाई ग्राफ में पॉसिबल नहीं है। बाकी जो हमारे मेथड्स हैं उसमें हम दो क्वांटिटीज़ को, दो वेरिएबल्स को कंपेयर नहीं कर सकते एक साथ, लेकिन लाइन ग्राफ के ऊपर हम दो या दो से ज़्यादा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा वेरिएबल्स होंगी उतनी ज़्यादा हमारी लाइंस ड्रॉ होती जाएंगी। स्केल हमारा वही रहेगा लेकिन लाइंस जो हैं वो डिफरेंट ड्रॉ होती जाएंगी डिफरेंट वेरिएबल्स की। जैसे कि यहाँ पर रेनफॉल के अलहदा से हमने ड्रॉ किया है। लेट्स सपोज़ कि लाहौर की रेनफॉल 55 सेंटीमीटर थी 15 मई को, इस्लामाबाद की 30 थी, कराची की 50 थी, कोयटा की 30 थी, पेशावर की 42 थी। इस तरह से हमने डॉट्स लगाए और ज्वाइन करके हमने सेकंड लाइन को भी फॉर्म कर लिया। तो लाइन ग्राफ के ऊपर टू और मोर देन टू वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ईजीली। The second point is line graph is the best way to show decrease or increase in annual, monthly and daily production of various items. Beside this, line graph is also used to show weather condition, population, production, animal distribution, exports and imports of a country. Line graph is the best way. line graph के थ्रू हम किसी भी चीज़ की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को या एनुअली, मंथली और डेली प्रोडक्शन के अंदर जो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है उसको हम आराम से शो कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने शो किया था कि किसी सिटी में टेम्परेचर ज़्यादा है, इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं पर डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम इजीली लाइन ग्राफ के ऊपर इसको शो कर सकते हैं। बिसाइड दिस, लाइन ग्राफ इज़ ऑल्सो यूज टू शो वेदर कंडीशन, पॉपुलेशन, प्रोडक्शन, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन,
exports and imports of a country or region. Beside this, line graph is also used to show weather condition, population, production, animal distribution, exports and imports of a country or region. इसके अलावा लाइन ग्राफ हम वेदर कंडीशन के लिए, पॉपुलेशन को शो करने के लिए, एनिमल प्रोडक्शन को शो करने के लिए और किसी भी कंट्री की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को शो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ ऑन लाइन ग्राफ वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड द फ्लक्चुएशन एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ आइटम. लाइन ग्राफ के ऊपर हम ईजीली चीज़ों के दरमियान चेंजेस को समझ सकते हैं. फ्लक्चुएशन मीन चेंजेस. जैसे कि हम अगर हमारे पास ये लाइन ग्राफ है टेम्परेचर का, तो हम इसके थ्रू हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे टेम्परेचर डिफरेंट सिटीज़ का तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है. सो दीज आर 3 मेरिट्स ऑफ लाइन ग्राफ. Now we will read about demerits of line graph, or you can say disadvantages of line graph. We can show average quantities, that is annual rainfall and temperature on line graph, but we cannot show percentages on it. हम लाइन ग्राफ के ऊपर जो हमारी एवरेज क्वांटिटीज़ एंड नंबर्स हैं उनको तो शो कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज वैल्यूज़ को हम शो नहीं करेंगे. परसेंटेज को शो करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे. लेकिन लाइन ग्राफ के ऊपर, लाइन ग्राफ का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम उसके ऊपर परसेंटेजेस को शो नहीं कर सकते. द सेकेंड पॉइंट इज़ वी कैन नॉट शो द टोटल क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ. हम लाइन ग्राफ की मदद से टोटल जो क्वांटिटी है, जो हमारी कुल रकम है, कुल तादाद होती है, उसको शो नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द एनुअल रेनफॉल विद दिस ग्राफ. फॉर एग्जांपल, अगर हम पूरे साल की रेनफॉल या पूरे साल के टेम्परेचर को शो करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ये ग्राफ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उस सूरत में हमारे पास सिर्फ एक ही डॉट आएगा ईयरली. साल का, एक पूरे साल का या टोटल क्वांटिटी का एक ही डॉट बनेगा, और जब तक हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट्स नहीं होंगी तो हम डॉट्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, लाइन को फॉर्म नहीं कर सकते. सिमिलरली, वी कैन शो द एनुअल और मंथली चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री और सिटी ऑन दिस ग्राफ, बट वी कैनॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ ऑल सिटीज़ ऑन इट. इसी तरह से हम एनुअल और मंथली जो चेंजेस हैं पॉपुलेशन के अंदर, उसको तो आराम से शो कर सकते हैं. किसी भी कंट्री या सिटी की जो पॉपुलेशन है उसके दरमियान जो चेंजेस हो रहे हैं उसको तो हम लाइन ग्राफ पे शो कर सकते हैं. लाइन ग्राफ इज़ बेस्ट टू शो द चेंजेस इन द डिफरेंट थिंग्स, बट वी कैनॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ ऑल सिटीज़ ऑन इट. सारी सिटीज़ की टोटल पॉपुलेशन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. सो दिस मैथड इज़ बेस्ट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट क्वान्टिटीज़, for showing the changes over the different periods of time, but we cannot show percentages and we cannot show the total quantity. I hope you understand about the line graph well through this video. We will read about other graph in our next class. Thank you for showing this video.